गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रेरणा लोधा है। मैं चाकुलिया से बिलोंग करती हूँ। आई एम अ प्राणिक हीलर एंड अ बेसिक प्राणिक हीलिंग इंस्ट्रक्टर। तो empowerment is the mantra of our today's guest of the evening, who is joining us from Kolkata, Ankita Agarwal. Ankita was an interior designer, but now she is a full-time pranic healer. She entered into pranic healing in 2010. It's 11 years she's been in pranic healing, and since 8 years, Ankita is a trainer. Ankita is a trainer of basic, advanced, and psychotherapy. Ankita is spreading the teaching of Grandmaster Chokok Sui tirelessly in Assam, Jharkhand, Orissa, Punjab, and West Bengal. Her teaching style has clarity and is simple to understand. I welcome Ankita Agarwal to our session of Tea Time with a special guest. So, welcome, Ankita. How are you, Ankita? You can unmute yourself, Ankita. First of all, thank you, Prerna, so much for the opportunity to join you all for the tea time. Unfortunately, I don't have my tea around me, but yes, I hope people are also having the tea. Such a nice way you just showed the tea there. Yes, and I was going through some of the participants, and I'm happy to see a lot of similar faces. So yay, welcome, and because of Zoom, we can connect also. Yes. So thank you so much, Prerna. Thank you so much, Nitilika, and everyone else who took out time and is joining for the session. Yes, how is everyone? Doing well? The session's helping us? Waiting to see you. Was waiting to see you, and today the session has been joined. That's so sweet. Thank you. So I hope the sessions chal rahe hain, that all have been helping you all, and we'll just add new facets, new understanding again. So kyunki as per what I see, what I understand, a lot of you are already pranic healers, some of you are already. So काफी कुछ जो हम आपको बोलने वाले, maybe you already know. Yes, but hopefully it will also help to add some new understanding. And kabhi जब already पता भी होता है, it's a good way to just be reminded of the teachings. Just recall अच्छा कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं और कहाँ हम rectify और कर सकते हैं. Yes, and आज हमारा topic होने वाला है prosperity, and this is something that we all want, we all run after, but prosperity earn करना एंड प्रॉस्पेरिटी स्टेबल रखना, ये दोनों चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है. एंड कैसे दोनों चीज को अपने और एनहांस कर सकते हैं, एक छोटा सा वापस रिमाइंडर में सेशन में गो थ्रू करेंगे. एंड एज पर व्हाट आई अंडरस्टैंड, वी ऑलरेडी हैव सम टाइम आफ्टर द सेशन आल्सो टू हैव Q&A, राइट? सो आपको कुछ क्वेश्चंस अगर आता है तो टॉपिक यस आप चैट रूम में डाल सकते हैं, प्लस Q&A में भी हम लोग उसको कवर कर सकते हैं. सो बिफोर वी बिगिन, शैल वी डू अ शॉर्ट प्रेयर प्लीज? Yes, so please prepare yourself, just close your eyes, relax yourself. Inhale, exhale slowly. The divine supreme being, divine father, divine mother, to all the great ones, to all the spiritual teachers, to all the holy beings, we humbly invoke for divine blessings, for divine guidance, for divine light, for enhanced prosperity, abundance in our lives, for divine help and divine protection. In full faith, we thank you. Gently, with a smile, open. Okay. तो जब हम बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी के बारे में, तो सबसे पहला माइंड में इमेज आता है ऑब्वियसली इज money. Although prosperity is not just money, it is also having healthy relationship, it is also having good health. लेकिन हमारे माइंड में सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी मतलब मनी ही आता है. चलिए मनी का ही बात करते हैं, लेकिन याद रखिएगा भले ही हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मनी, सेम प्रिंसिपल, सेम कॉन्सेप्ट्स आप अपने अदर एज ऑफ लाइफ में भी एड ऑन कर सकते हैं. यस, जो फॉर्मूला हमें मनी अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, सेम फॉर्मूला हमें और भी चीज अट्रैक्ट करने में हेल्प कर सकता है. यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग प्रॉस्परस, राइट, आपको एक वेल्दी फीलिंग देता है. आप लगता है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ खरीद सकते हैं. जब मार्केट में जाते हैं आपको कुछ खरीदने का मन करता है और प्राइस टैग देखते हैं, लगता है यार तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो हमें प्रॉस्परस फीलिंग नहीं देता. प्रॉस्परस फीलिंग तब आता है जब आपको चढ़ना चाहते हैं एंड मनी इज नॉट योर क्राइटेरिया कि हम नहीं कर पाए, राइट, वो आपको प्रॉस्परस फीलिंग देता है. सेकेंड होता है अबंडेंस. आप सुनते होंगे बाबा हम लोग प्रेयर जब करते हैं, थैंक यू गॉड फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस भी हम साथ में मीट करते हैं. एंड अबंडेंस मीन्स कि आपके पास जो भी नीड है वो मीट हो जाना. जो भी चीज है, चाहे वो खाने का हो, आपके पास कपड़े हो, आपके पास चीजें हो, रिसोर्सेज हो, अबंडेंस में है, कमी नहीं होती है. तो अबंडेंस एक सिचुएशन भी होता है कि लाइफ में सब कुछ अबंडेंस में है, सब कुछ इनफ है, सफिशिएंट है, आपका नीड्स पूरा होता रहता है. एंड कभी कभी अबंडेंस एक माइंडसेट भी होता है. माइंडसेट इन विच वे?
फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 10 रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? फॉर मोस्ट ऑफ अस हु इज हियर 10 रुपीज से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। येट अगर कोई बेगर को 10 रुपीज देना है, हाउ डू वी फील? एक ऑब्वियस थॉट आता है कि चलो वो मिसयूज नहीं हो, दैट इज फेयर इनफ। बट कभी पता है हम कैसे, हम क्यों देते 10 रुपीज, मेरे पास कम हो जाएगा। सम पीपल गेट दिस माइंड, राइट? तो वो लैक मेंटालिटी है। तो आपको अबंडेंस फीलिंग नहीं आता, आपको लगता नहीं काफी ज्यादा कुछ है, कुछ कमी है। ना देखेंगे बहुत जन बात करते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कैसे होगा, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है पॉपुलेशन हैंडल करने। एक बिगर लेवल पे वो भी एक लैक मेंटालिटी। आप 100 इयर्स पहले देखें जो पॉपुलेशन था और 100 इयर्स बाद, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। 100 इयर्स में पॉपुलेशन का कितना अंतर, फिर भी मदर नेचर इज प्रोवाइडिंग, राइट? ऐसा तो नहीं है कि मदर नेचर में खाना कम पड़ गया। सो देयर इज अबंडेंस इन नेचर। अगर आप वो चीज लेके चलेंगे कि दुनिया में हर कुछ सफिशिएंट है, मदर नेचर विल प्रोवाइड, गॉड विल प्रोवाइड। तो वो एक स्ट्रेस जो हम कैरी करते हैं, अगर उसको जॉब मिल जाएगा तो हमारा क्या होगा, वो ये चीज कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, या घर में कभी कभी उसको वो ज्वेलरी मिल जाएगी तो हमारा क्या होगा, तो वो सब स्ट्रेस कम होना शुरू। What we need to have prosperity is first and foremost an abundant mindset, the belief that there is sufficient for everyone. तो बहुत बार देखेंगे दुकानें खोल के बैठते हैं हम लोग, हमारा जब फैमिली बिजनेस होता है तो हमें टेंशन होती है कि ग्राहक वहां चला जाएगा तो हमारे यहाँ नहीं है, कस्टमर्स को लेके हम लगती, डजंट मैटर, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन। एंड ऐसा तो नहीं है कि सारे मेरे पास ही यार, राइट? एक लौता हमारा शॉप तो नहीं है पूरे शहर में या पूरे स्टेट में, देयर आर ऑलरेडी मेनी मोर पीपल, हमारा घर चल रहा है ना। सो लेट्स हैव दिस फेथ दैट थिंग्स विल वर्क आउट, एंड जो मेरा नहीं है वो ऐसे भी मेरा नहीं, तो उसके पास जाए या किसी और के पास जाए, हाउ डज इट मैटर? मेरे पास अगर ऐसे भी नहीं आ रहे, हाउ डज इट मैटर? तो ये बिलीव कि देयर इज इनफ एंड द बिलीव दैट नोबडी कैन टेक जो मेरा है, both will give you a lot of secured feeling, secured feeling, I repeat, ये security क्यों जरूरी है? What happens हम secured नहीं feel करते? If you want to just type in the chat room, क्या होता है अगर हम secured नहीं feel करते financially, या in terms of let's say my customer, या in terms of my business, क्या होता है? कौन से स्टेट में हम आते हैं, कौन से इमोशनल स्टेट में हम रहते हैं? हाँ, थोड़ा सा ब्लैंक रिस्पॉन्स है यहाँ पे। स्ट्रेस, लैक, व्हाट एल्स? अगर हम सिक्योर नहीं फील कर रहे, डेफिनेटली स्ट्रेस है, लैक है डेफिनेटली, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वन स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे। इट्स ओके, लेट्स से दैट इनसिक्योरिटी, यस, बट इनसिक्योरिटी आल्सो लीडिंग टू डेस्परेसी। आई रिपीट, डेस्परेट स्टेट में हम आ जाते हैं। तो क्या होता है अगर हम डेस्परेट स्टेट में रहते हैं, राइट, हम जो भी काम करेंगे दैट विल ऑलवेज मेक मी फील डेस्परेट, वो हमेशा मेरे को हेल्पलेस वाला फीलिंग देगा। टू गिव यू एन एग्जांपल, क्या आपने कभी नोटिस किया एनीवन जो जॉब सर्च कर रहे होंगे आउट ऑफ डेस्परेसी, कभी हमारे बच्चे में भी, हमारे फैमिली मेंबर में भी, हमारे फ्रेंड, कभी कभी एक स्टेट आता है जब नहीं मिल रहा है जॉब एंड यू नीड अ जॉब, एंड बहुत डेस्परेट स्टेट में हम आ जाते। उस डेस्परेसी में क्या सोचते हैं, जैसा भी चलेगा बस एक बार मिल जाए, राइट? हम कुछ भी क्लॉज मानने को रेडी हो जाते, जो शर्त है, जो टर्म्स एंड कंडीशन मानने को रेडी होते, उसे चाहिए मिले। तो डेस्परेट स्टेट में वी अलाउ लाइफ टू टेक एडवांटेज ऑफ अस। आई रिपीट, डेस्परेट स्टेट में लाइफ हमारा एडवांटेज ले पाता है, लोग हमारा एडवांटेज ले पाते हैं, एंड हम जो अट्रैक्ट करते हैं दैट विल नॉट बी व्हाट आई वांट, क्योंकि हम क्या सोच रहे थे डेस्परेट स्टेट में, बस कुछ भी मिल जाए, जैसा तैसा भी मिल जाए, बस एक बार चाहिए मिले। तो इस जैसे तैसे के चक्कर में आई मे नॉट गेट समथिंग दैट इज वेरी गुड फॉर मी। वो जब चीज आ भी जाएगा मेरे को वो स्ट्रेस ही देता है, फिर हम सोचते हैं भाई क्यों तो हमें काम किया, फिर याद आता है डेस्परेट थे, कुछ और नहीं मिला इसलिए निभा, तो वो निभाने वाला फीलिंग आ जाता है, वो बस करना पड़ेगा वाला फीलिंग आ जाता है, एंड दैट डज नॉट मेक अस हैप्पी। तो भले वो पैसा दे रहा है, राइट, भले वो जॉब हमें मनी दे रहा है, वी डोंट फील प्रॉस्परस, वी डोंट फील अबंडेंट, इन फैक्ट वी फील हेल्पलेस समटाइम्स, राइट? एंड बाय द वे, जस्ट टू कोरिलेट, ये सेम डेस्परेसी में जब कोई शादी करता है, समटाइम्स रिश्ता नहीं हो रहा होता है, एंड समटाइम्स फैमिली प्रेशर देने लगता है कि अरे नहीं हो रहा है इसी से कर लो, आप देखेंगे वो रिश्ता मन लायक नहीं मिलता। इट इज समथिंग जो कॉम्प्रोमाइज करना हो रहा है, एडजस्ट करना पड़ रहा है, बस करना। तो डेस्परेट स्टेट से अगर निकलना है, एक बेसिक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, एक स्टेबिलिटी बहुत जरूरी, और इस स्टेबिलिटी के लिए ऑब्वियसली वी नीड टू ऑल्सो हैव सेविंग्स, राइट? तो हम बहुत जन रियलाइज नहीं करते ये चीज, इनफैक्ट
बहुत जमाना चेंज हो रहा है, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। आप देखेंगे अगर हमारे जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे वुड सेव अ लॉट, राइट? कम खर्चा करते थे। हॉलिडे कॉन्सेप्ट पहले रहता नहीं था। हॉलिडे पहले मतलब दादी घर जाओ, नानी घर जाओ, पहले यही हॉलिडेज होते थे, राइट? तो पहले सेविंग का कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड अभी जो ट्रेंड आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली एक ग्लोबलाइजेशन होता है, आपका यूएस यूरोप का भी इफेक्ट आता है, इन्फ्लुएंस आता है। अभी वो खर्चा बहुत जल्दी होना शुरू होता है। लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, आपको अपने शौक पूरे करने हैं, डिजायर्स पूरे करने हैं, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि उस चक्कर में सेविंग्स आजकल लोग इंपॉर्टेंस दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? सेविंग्स आपके कितना ही अमाउंट क्यों ना हो, भले ही आप एक छोटा छोटा अमाउंट से शुरू करते हो, पर वो सेविंग का इफेक्ट है दैट इट गिव्स यू द एनर्जी ऑफ स्टेबिलिटी। आई रिपीट, सेविंग्स स्टेबिलिटी देता है। आप देखो एनीवन जिनके पास सेविंग्स है एंड समबडी सेविंग्स नहीं है, हु इज मोर डेस्परेट? कस्टमर चाहिए चाहिए। जिनके पास सेविंग्स नहीं है, नहीं पता अगले महीना कहाँ से बिल भरेंगे अगर सेल नहीं हुआ, राइट? फॉर समबडी हु हैज सेविंग्स, obviously you still want sales, but आप उतना desperate नहीं होते, उतना helpless नहीं, right? Now even if you are a non earning member, अगर आपका खुद का कोई income source नहीं है, आपको पॉकेट मनी मिलता होगा, आपके खुद के कुछ एक हाथ खर्च मिलता है, right? Try to have savings from that. आपको पता है नेक्स्ट मंथ वापस मिल जाएगा, well and good, but still have savings। क्यों? वो आपको पर्सनली prosperous फील करवाए, एंड ये abundance फीलिंग फिर आना easy लगता है। अभी क्या है, रिमाइंड करना पड़ता है, अच्छा नहीं अबंडेंस सोचो, अबंडेंस सोचो, हार में तो सोच रहे हैं, अंदर में सोच रहे हैं कहाँ से तो होगा, कैसे तो होगा। तो अभी क्या है, वो बहुत नेचुरल फीलिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो बहुत फोर्स्ड वे में लाना पड़ता है उस फीलिंग को। बट सेविंग बहुत इजी तरीका है कि ये सारा इमोशन आपके अंदर नेचुरली आ जाए विदाउट मच एफर्ट, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्लोज योर आईज, आस्क योरसेल्फ, जब आपके हाथ में मनी होता है, व्हाट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स? एम आई थिंकिंग कि कहाँ कहाँ खर्चे करने हैं? एम आई थिंकिंग कि कौन से लोन चुकाना है, क्या वो स्ट्रेस में रहता है? एम आई थिंकिंग कि इसको बजट कैसे करना है? एम आई थिंकिंग सेव कितना करना है? व्हाट इज माय रिस्पॉन्स व्हेन आई हैव मनी इन माय? आपको ये आंसर नहीं करना मुझे, आपको सिर्फ अपने ओन एनालिसिस के लिए सोचना है, राइट? नाउ जस्ट आल्सो आस्क योरसेल्फ, हाउ मच सेविंग्स डू यू ऑलरेडी हैव? आपका पर्सनल सेविंग्स, नॉट फैमिली सेविंग्स, नॉट जो दूसरे आपके नाम पे कर, आप खुद कितना सेव कर? जस्ट आस्क योरसेल्फ। या हो सकता है कभी इस फेस में सेविंग नहीं हो, बट कभी सेविंग होता था, या हो सकता है पहले नहीं होता था, आज सेविंग हो। ना दोनों सिचुएशन के अंतर को याद करें। जब सेविंग होता है तब आपको कैसा फीलिंग आता है, और जब सेविंग खत्म हो गई तब कैसा फीलिंग? सी वैसे आप ऑब्जर्व करेंगे ना लाइफ में कौन सा फॉर्मूला वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं वर्क कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि लाइफ एक साइकिल में, कभी लाइफ अच्छी होती है, कभी लाइफ खराब। तो उसको ऑब्जर्व करना भी जरूरी है। अच्छा गया तो क्या क्या करने से अच्छा गया, जब खराब सिचुएशन में है क्या क्या नहीं किए या क्या क्या किए जिससे खराब आ रहा है, ताकि हम वो गलती को रिपीट करना बंद करें। नहीं तो क्या होता है, लाइफ ऐसे चलता रहेगा, अब पता ही नहीं क्या फॉर्मूला कब काम कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, तो कहाँ करेक्ट करना है वो समझ में नहीं। तो एक स्टेप बैक लेना, कभी कभी ऑब्जर्व करना लाइफ को कि हाँ कौन से फॉर्मूला से मेरा लाइफ बेटर हो रहा है, कौन से फॉर्मूला से लाइफ और खराब हो रहा है, ताकि वी कैन अवॉइड जो हेल्प नहीं कर रहा है एंड वी कैन ऐड ऑन जो हमें हेल्प। क्योंकि लाइफ में आगे जाना दो चीज है, एक नेगेटिव को अवॉइड करना, राइट? एक होता है पॉजिटिव को बढ़ाते जाना। तो सेविंग इज वन थिंग दैट वी नीड टू ऐड। अगेन अ स्मॉल रिमाइंडर, आप भले एक छोटा अमाउंट से शुरू करो, डज नॉट मैटर, बट स्टार्ट सेविंग। भले आपको लगता है कि भाई खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे, सेविंग कहाँ से करें, डज नॉट मैटर। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, कहीं से तो शुरुआत कर सकते, राइट? एंड धीरे धीरे फिर ये अमाउंट बढ़ते जाए। Okay, so saving gives us security. This is one word I will really like to add on. By the way, just to give you an idea, मैंने कुछ और सेशन प्लान किया, but when I tuned into the group at 4:30 today, and जब मैंने बोलना शुरू की, टॉपिक्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे, so I realized कि अच्छा नीड कुछ और है, तो सेविंग इज वन मैसेज जो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर। डेफिनेटली फोकस ऑन सेविंग एंड डेफिनेटली फोकस ऑन कैसे आप और एड ऑन कर सकते हो इनकम सोर्स। डोंट जस्ट स्टिक टू वन इनकम सोर्स। यस, क्योंकि एक चीज जो हम लोग और सीखते हैं कि अपना बास्केट एक ही मत रखिए जिसमें सारे एग्स रखे हुए हैं। कोविड हैज टॉट अस अ बिग लेसन कि जितना आपका एक वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होता है, वैरायटी ऑफ इनकम सोर्स है, इट रियली हेल्प्स, राइट? नाउ वैरायटी ऑफ इनकम सोर्स तब पॉसिबल है जब आपका फर्स्ट इनकम सोर्स स्टेबल है। अगेन द वर्ड स्टेबिलिटी, इफ यू नोटिस पावर स्टेबल वर्ड यहाँ पे आ रहा है। तो अगर फर्स्ट इनकम सोर्स ही स्टेबल नहीं है, उसमें ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर आप 2-3 और खोलने जाएंगे, दैट्स अ डिजास्टर फॉर मी।
क्यों? क्योंकि हम एक में तो स्टेबल नहीं, 2-3 और खोल लिए, एक को मैनेज नहीं कर पा रहे, 2-3 और का स्ट्रेस ले लेंगे, कुछ भी मैनेज नहीं हो पाएगा। द फॉर्मूला इज पहले एक को स्टार्ट करिए, एक को ट्राई करते रहिए, तो सब बेटर बनाते रहिए। आपको रीप्लानिंग करनी पड़ती है, कुछ फॉर्मूला काम किया, कुछ फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, तो आपको वापस प्लान करना पड़ता है, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, काम को सेट करने में। जब वो सेट होना शुरू हो जाएगा, पता है कि हाँ मिनिमम इतना तो इनकम हो ही जा रहा है इस काम से, इतना तो मैनेज कर ही ले रहे हैं, राइट? देन यू स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग। फर्स्ट जैसे शुरू हो जाएंगे डाइवर्सिफाई करना, आप सोचिए, सम ऑफ यू माइट बी पेरेंट्स, आपका एक बच्चा है वर्सेस 2 किड्स, ट्विंस जब होते हैं हालत खराब हो जाती है। एक बच्चा होता है थोड़ा बड़ा होता है, फिर सेकंड का सोचते हैं हम लोग। सेम फॉर योर बिजनेस, सेम फॉर योर इनकम सोर्स। एक थोड़ा सेट हो जाए, सेकंड को मैनेज करना इजी, बिकॉज़ अ न्यू बिजनेस इज अ स्मॉल चाइल्ड, कांस्टेंट अटेंशन, सब कुछ दिखना पड़ता है उसको, राइट? तो डोंट बी इन अ रश, बी पेशेंट, अलाउ द प्रोसेस, एक टाइम दीजिए उस प्रोसेस को, वो सेट हो जाए तब वो बनाना बहुत इजी है। फाउंडेशन टेक्स टाइम, बिल्डिंग खड़ा करना आसान। एक बार वो फॉर्मूला समझ में आपको आ जाता है, एक बिजनेस में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिजनेस में सेम फॉर्मूला कैन हेल्प। लेकिन अगर फर्स्ट में ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं, देन 2, 3, 4 करते जाना, व्हाट विल हैपन? फाइनेंशियल स्ट्रेस। ये कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए यू नीड कैपिटल, राइट? यू नीड वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट्स। और इन्वेस्टमेंट्स अगर आप एक बार में बहुत ज्यादा कर लेते हैं विदाउट अ प्रॉपर रिटर्न, इट्स अगेन नॉट अ हेल्दी इमोशनल स्ट्रेस, राइट? वो बहुत एड ऑन कर सकते हैं। यस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आपको कोई भी बिजनेस से रिटर्न मिल सकता है बिना इन्वेस्टमेंट किए। शेयर मार्केट में आप घुसेंगे, अच्छा पहले शेयर से इनकम चाहिए फिर हम इन्वेस्ट करेंगे, क्या ये पॉसिबिलिटी है? No, हाँ जी, man. यस। तो सिमिलरली लाइफ में अगर कुछ भी चाहिए, वी हैव टू फर्स्ट इन्वेस्ट। अगर हमें प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, वी हैव टू फर्स्ट इन्वेस्ट। वेयर डू यू इन्वेस्ट? यू इन्वेस्ट इन मेकिंग अदर पीपल प्रॉस्परस, यू इन्वेस्ट इन अदर पीपल के लाइफ में उनको इजी करने, तभी चैरिटी आता है, तभी हेल्प आता है। तो चैरिटी सिर्फ यही नहीं होता कि आप डोनेशन दे रहे हो। यस, डोनेशन आप बहुत सुन चुके होंगे, आई थिंक लॉकडाउन में आप सबको भी सेशन अटेंड किए होंगे, यू विल हैव हर्ड कि डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, डोनेशन इंपॉर्टेंट, आप चैरिटी करो, हेल्प द पीपल इन नीड। आपके स्टाफ को चाहिए होगा हेल्प, मे बी सम पुअर होमलेस पीपल ऑन द स्ट्रीट, मे बी किसी रिलेटिव, आप देखते हैं बहुत जन के लॉस हुए हैं कोविड में, तो अगर ऐसे कोई घर है, कोई रिलेटिव है जहाँ पे पता है कि अर्निंग मेंबर्स नहीं है या अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं। यस, मनी से तो हेल्प है ही, बट क्या हम किसी को और तरीके से हेल्प कर सकते हैं? क्या हम किसी को जॉब लगवाने में हेल्प कर सकते हैं? क्या हम किसी को नया स्किल सिखा सकते हैं? कैन आई एटलीस्ट प्रे फॉर पीपल टू बी मोर प्रॉस्परस? तो बहुत तरीका होता है हेल्प करने का। बहुत जिनका लिमिटेशन आ जाता है कि हाँ मेरे पास पैसे इतने नहीं है कि मैं डोनेट कर सकती, है ना? जितने हैं उतना करिए, ठीक है, पर अगर डोनेट नहीं भी कर पा रहे, डोंट स्टॉप। मेरे पास डोनेशन 10% कर दिए महीने में एक बार, सिर्फ वो करके बैठिए मत, हेल्प मोर पीपल, राइट? अगर आपको पता है कि इंसान स्ट्रगल कर रहा है, जॉब ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा है, आप एक थॉट बनाओ कि भगवान उसको अच्छा जॉब मिल जाए। ये थॉट भी किसको हेल्प करते पता नहीं चलेगा, राइट? पर हम हेल्प उसमें करने से संकोच क्यों कर रहे हैं? हम उतना हेल्प क्यों नहीं कर सकते? हम वो थॉट क्यों नहीं बना सकते कम से कम? तो ये भी तो अबंडेंस हो गया ना। या फिर कभी कभी हेल्पलेस वाला फीलिंग आता है कि हम मेरे अकेले सोचने से क्या हो जाएगा। अरे आप सोचिए तो सही, आपके अकेले सोचने से हो सकता है कुछ नहीं हो, लेकिन आपका एक सोच वो सागर का एक बूंद तो बनेगा ना। तो दिस इज वन थिंग दैट आई फर्मली बिलीव, आई डोंट नो क्यों, बट बचपन से ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरे अंदर, बूंद बूंद सागर। इट्स एवरी ड्रॉप दैट काउंट्स, एवरी प्रेयर दैट काउंट्स। आप एक एक रुपया भी अगर सेव करते हैं, एवरीथिंग एड्स ऑन टू अ बिग बास्केट, राइट? तो ये मत सोचा करिए कि मेरे एक थॉट से क्या हो जाए। एक थॉट से नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप 10 थॉट्स बना लो, कंजूसी की हो इसमें, राइट? तो अगर कुछ एक आपका कोई भी हिचक है, आपका कोई भी एक क्या बोलते हैं लिमिटिंग बिलीफ है, तो उसको ओवरकम करें। आज अपने बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ यू के प्राणी किलर ऐसी लग रहे हैं जो, अगर आज हम बोलते हैं कि आज हम प्राणी हीलिंग कर रहे हैं, हम एनर्जी पे वर्क कर पाते हैं, तो अगर हम सीख रहे हैं कुछ, किसी का तो हेल्प होना चाहिए, एंड एवरी डे हेल्प होना चाहिए। तो ये एक फॉर्मूला बैठा लीजिए एक और मन में कि आज हम दिन भर में किसी के लिए भी एक हेल्पफुल थॉट बनाए कि नहीं बनाए, राइट? इवन इफ यू आर नॉट द अर्निंग मेंबर, अपने फैमिली बिजनेस को ब्लेस करिए ना, क्या दिक्कत? प्लांट, द आइडिया इज कीप प्लांटिंग, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप रिटर्न मत ढूंढिए। तो बहुत लोगों का कंप्लेन होता है, भाई हमें तो हम अर्निंग मेंबर भी नहीं है, हमें हाल पैसे भी नहीं मिलते, पैसे मांगना पड़ता है। आप प्लांट तो करो, आप अर्निंग मेंबर नहीं होंगे, बट अपने थॉट में आप सपोर्टिव तो हो सकते हैं, आप प्लांट तो कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज कम से कम, राइट? तो ये भी एक तरह का प्लांटिंग हो जाए।
तो अगर हम प्लांट करेंगे फ्रूट्स आएगा ही, राइट? अगर हम किसी के लिए सोचेंगे उसका बिजनेस और अच्छा जाएगा, फ्रूट्स आएगा ही। कभी कभी होता है कि ऑन द स्ट्रीट, सच में आइडिया कैसे कैसे आप प्लांट कर सकते हो कि अगर आप स्ट्रीट में हैं या समटाइम्स आपके वो क्या बोलते हैं उसको, वेंडर्स होते हैं ना, जो आपके रास्ते में आपको चिप्स बेचते हैं या कुछ बेचते हैं गाड़ी में सिग्नल्स पे, आपको कभी कभी नहीं खरीदना होता है, fair enough, पर आप थॉट तो बेच सकते हैं ना, भाई इसका घर चल जाए इजीली, भाई इसको प्रॉस्पेरिटी मिल जाए। उस एक थॉट में क्या दिक्कत? अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, आपको कुली नहीं चाहिए, तो एक थॉट बना दिया कि भाई इसका प्रॉस्पेरिटी मिले इसको। तो इवन इफ यू से नो टू समवन, राइट, हम उसके ऑर्डर में सिर्फ ना का एनर्जी क्यों दे? अब वो ना का एनर्जी लेके किसी और के पास जाएगा, क्या अट्रैक्ट करेगा? फिर ना ही अट्रैक्ट करेगा ना। कभी कभी हमारा थॉट वो भी तो इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर हम ना कर भी रहे क्योंकि मुझे सर्विस नहीं चाहिए, वेरी ना, बट कैन आई ऑल्सो प्लांट अ ब्लेसिंग उस पर्सन पे कि चलो हम ना किए कोई बात नहीं, बट कहीं और से प्रॉस्पेरिटी मिल ही सकता है इंसान को। तो ये स्मॉल स्मॉल सोच में अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते स्मॉल स्मॉल तरीकों से, स्मॉल स्मॉल मूवमेंट्स, ये लाइफ में एक अबंडेंस क्रिएट करने का सबसे इजी फॉर्म है। क्योंकि हम सबके लिए दुआ कर रहे हैं, सबकी लाइफ में सब कुछ, आवर लाइफ विल बी ब्लेस्ड। पर ये जो कभी कभी हम जब नाराज हो जाते हैं जिंदगी, जब लाइफ अच्छी नहीं जा रही होती, फिर सोचते हैं यार क्यों तो करते हैं, कुछ मिलेगा तो हम अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छा होगा मेरे संग तो हमको बिलीफ आएगा। ये फॉर्मूला थोड़ा सा छोड़ना, लर्न टू हैव फेथ कि आप प्लांट करो, वो बीज का फल निकलेगा ही, राइट? ये सिंपल सा फेथ आपको बहुत आगे ले जाएगा। कभी कभी हमको दुख होता है कि भाई हम उससे तो आपने बिल ठीक से नहीं, पर आपने 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, राइट? आप दे दिए ना एक्स्ट्रा, और सपोज आप घर आके सोचे कि यार हम 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, हम ध्यान नहीं दिए, कोई बात नहीं, थॉट चेंज करिए, हम किसी को एक्स्ट्रा दिए ना, वो एक्स्ट्रा भी वापस रिटर्न होगा, कोई आपको भी एक्स्ट्रा दे सकता है। तो ये अगर हम वो नेगेटिव सोचते रहेंगे, क्यों दुकान वाला देखा नहीं, वो एक्स्ट्रा ले लिया, मैंने इसे बताया भी नहीं, ये वो, तो जितना नेगेटिव भेज, वो 100 रुपए दे के भी नेगेटिव ही आना है मेरे पास, क्योंकि 100 रुपए के साथ साथ हम नेगेटिव एनर्जी साथ में भेज, तो एक्स्ट्रा कभी पेमेंट कर भी जाते हैं। सपोज मेरा चेंज नहीं था, कहीं आप दे रहे हो, वो आपका फॉर एग्जाम्पल 105 बना, वो 110 ले लिया, ये एक्स्ट्रा अगर दे भी रहे, just add on, just have the faith कि all extra will come back to you. Don't send negativity साथ, राइट? तो ये अबंडेंस क्रिएट करेगा आपके खुद के माइंड में कि ठीक है एक्स्ट्रा ही तो गया, कोई दिक्कत नहीं, वापस भी आएगा, और आपकी लाइफ में भी अबंडेंस क्रिएट करेगा। वरना बहुत एक्स्ट्रा तो देते हैं लेकिन साथ में किच 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 करते रहते कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो रिटर्न नहीं आता। वो फिर आपको रिटर्न आएगा इन द वे कि प्रॉस्पेरिटी रिटर्न नहीं आता है, वो वापस फिर कोई गाली देता है पैसा देते वक्त हमें, कितना पैसा लग रहा है, ऐसा देना पड़ रहा है, वैसा देना पड़ रहा है, और हमें अच्छा लगता नहीं है। नन ऑफ अस हियर, अगर कुछ सुनाता है पैसे अच्छा लगता है हमें, राइट? तो लेट अस नॉट आल्सो इन आवर माइंड सुनाओ किसी को कि एक्स्ट्रा लग गया या ये लग गया या वो लग गया, क्योंकि ये बहुत पिंचिंग हो जाती है, स्पेशली रेस्पेक्ट को बहुत हर्ट कि अगर कोई पैसे के लिए हमें सुना। यस, कुछ कुछ क्लैरिटी लग रहा है कि कहाँ कहाँ सोच सकते हैं, कहाँ कहाँ और ठीक कर सकते हैं। यस, so okay, I always overstepped a little bit, so just if you can have Q&A, if you have any question, kuch aur clarity, we can definitely look into it, answer those also. सब इतना ब्लैंक है पूरे सेशन में, समझ में आ रहा है रॉन्ग बोल रही हूँ, पॉइंट में बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? It was a wonderful session, Ankita. Very, very informative. Thank you so much. Thank you. So questions? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस या कोई भी इससे हाँ जी, रिलेटेड कोई कुछ- क्वेश्चन है? एक चीज था अंकिता जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। कंचन। मैं कंचन आपकी स्टूडेंट। हाँ जी, अच्छा मैं पहचानी आपको। जैसे अगर अपने लोग के पास, जैसे हम लोग को कोई चीज का फीस पे करना है और अभी हम लोग के पास इतना है नहीं, तो हम लोग को क्या वो चीज टाइम बीइंग के लिए ड्रॉप कर देना चाहिए कि लाइक अभी हम लोग का फैमिली इतना सपोर्ट नहीं कर सकता, मैंने क्या थॉट क्रिएट करना चाहिए उस समय के लिए? डिपेंड करता है फीस भरना है किस टाइप का। नॉर्मली अगर फीस होता है तो ट्यूशन फीस जैसा हो जाता है, उस टाइप का बोल रहे हो? हाँ, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, राइट? तो स्कूल फीस, ट्यूशन फीस क्या है, टाइम पे देनी ही पड़ती है। अगर नहीं दे पा रहे तो स्कूल ऑब्वियसली फीस नहीं है, समझे कुछ एक्स्ट्रा है, स्कूल फीस तो चलिए हम लोग भर पा रहे हैं, समझे ऐसे कुछ हम लोग ने ज्वाइन किया है एंड अब लग रहा है कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन इतना नहीं है, तो मैंने इन दैट पोजीशन मैंने हम लोग को क्या करना चाहिए कि वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल बजट। अगर हम ऐसा कुछ ज्वाइन कर लिए हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो हम करना चाहते हो, मनी नहीं हो पा रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल बजट योरसेल्फ, हर चीज का खर्चा डिवाइड करिए, देखिए मेरे पास सेविंग्स इतना आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एंड देन डू इट।
ना जरूरी नहीं हम लोग हमेशा, अगर तुरंत लगता है कि नहीं तुरंत बहुत फाइनेंशियल बर्डन जा रहा है मेरे लिए, टेक योर टाइम, 3 months 4 months 5 months रुक जाइए, फिर आप शुरू कर लो, लेकिन सेव इन दिस पीरियड ऑफ टाइम ताकि हम वो क्लास कर सकें। नाउ फॉर मी, मेरा लॉजिक ये है कि अपने सपने को कम मत करिए, अपना कैपेसिटी बढ़ाइए, राइट? तो अगर वो क्लास जेन्युइनली अच्छा है, अगर वो नॉलेज जेन्युइनली आपके काम का है, हाउ कैन आई इंक्रीज माय रिसोर्स टू डू दैट? यस, दिस इज माय एडवाइस। मन मारने का काम मैं थोड़ा सा कम सजेस्ट करती हूँ, मैं बोलती हूँ सब कुछ मिलना चाहिए लाइफ में, लेकिन ऑब्वियसली प्लानिंग एंड विद बजटिंग। Does that answer your question, Kanchan? देखिए, अब एग्जैक्टली मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा एग्जैक्टली क्या करना है, सिचुएशन डिपेंड होता है, आपका खुद का क्या फीस है, आपका क्या बजट है, वो मैं एग्जैक्टली बहुत फैक्टर्स है उसमें, पर आप जनरली ये चेक कर सकते हो कि हाउ कैन आई प्लान, प्लानिंग करिए, हो जाएगा, क्यों नहीं? अगर स्पेशली वो क्लास हेल्पफुल है, आपको हेल्प हो। Yes, Sushma, you can unmute yourself. जैसे आपने नितिका ने हाथ बोला उठाया। टाइडिंग एंड सेविंग गो हैंड इन हैंड, बिल्कुल, डोनेशन भी करना है, प्लान भी करते जाना है, सेविंग भी करना है। तो ये आपका हो गया टू क्रिएट प्रॉस्पेरिटी। जो हमें अवॉइड करना है कि मेरे चलते किसी को नुकसान, तो उससे हमारा भी नुकसान है। बहुत जन होते हैं, आप देखेंगे पैसा तो पानी की जैसे जीवन में आता है, कितना कमाते हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे पूछो कहाँ है, लोगों का रोना क्या है, अरे पैसे तो आ जाते हैं लेकिन टिकता नहीं, हाथ में पैसे नहीं टिकते, सब खर्चा हमारा लोन पे ऑफ करने में जा रहा है, या EMI में जा रहा है, या इसमें, तो पैसे टिकाने हैं, राइट? तो एक तो सेविंग हो गया, दूसरा हो गया कि मेरे चलते किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी को पैसा मेरा बनता है किसको देने का, आप देते जाओ, मेरे चलते लॉस में नहीं हो, तो पायरेसी जितना कम हो सके, राइट? ऑल दिस रियली हेल्प्स। टाइदिंग पैसा लाता है, आई रिपीट, टाइदिंग डोनेशन देना पैसा लाता है, लेकिन पैसा टिकाने के लिए सेविंग एंड डू नॉट क्रिएट लॉसेस, किसी और को लॉस मत कीजिए, तो पैसा टिकता भी है। सुषमा जी, अगेन आपका क्वेश्चन था, प्लीज गो अहेड। I wanted to know, like, suppose if we want money, where we have to tithe? I'm confused with that. Sometimes we tithe for medical and some other things, food. Then we will get that particular thing वापस. What about money? आपने कितने लेवल्स किए? आपने आध्यात्मिक तक कर लिया, कृषति तक कर लिया? रातिक तक किया है। कृषति, रातिक। ओके। तो अगर आध्यात्मिक तक किए हैं, व्हाट आई विल सजेस्ट इज तो 10% डोनेशन जो होता है, सबका सब एक जगह मत डालिए, ट्राई टू डिवाइडेड। तो कुछ आप कर दिया वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए या फाइनेंशियल हेल्प के लिए, कुछ आप कर दिए फूड मेडिसिन, कुछ आप कर दिए एजुकेशन। तो क्या है, घर परिवार को सब कुछ चाहिए होता है, तो सब टाइप का कर्मा भी वापस घूम फिर के। यस, वेलकम। रिया रुद्र। यस मैम। मैम ये पूछना था कि जैसे आपने बोला कि अगर आपको कोई चीज खरीदना है और वो आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, फिर भी आप सोचो, मतलब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये चीज? वो तो आप मतलब नहीं है ना बस की, तो फिर क्यों? नहीं, मैं समझी नहीं आपका। अगर आप नहीं कर पाते तो सेव करो, राइट? रिया, आपका क्वेश्चन वापस बोलिएगा, आप बोल रहे हो मैम मैं कह रही हूँ, डाउट आ रहा है आपको? हाँ, आपने बोला था कि जैसे आपको कोई चीज लेना है, पसंद आ गया मार्केट में, तो आप अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो आप मतलब ऐसे सोचते हो कि अरे मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो फिर इस सिचुएशन में यही आएगा ना दिमाग में, अगर आपके पास पैसे नहीं हो या फिर आप नहीं अफोर्ड कर तो सकते। मैं बोल ही रही थी, वो मैं वही बात बोल रही थी, कहना चाहते तो नॉर्मली अफोर्ड आता ही है, तो ये अबंडेंस वाला फीलिंग नहीं आता है, लैक मेंटालिटी हो गया, ये मैं बोल रही थी आपको। तो दैट इज अ वेरी नेचुरल थॉट एंड वो आता ही है, एंड आप देखेंगे वो थॉट हमें प्रॉस्पेरस फील नहीं कराता। तो वही मैं बोल रही थी कि इट्स अ नेचुरल रिएक्शन ना। रहा बात कि क्या सोचना चाहिए, आप बोल सकते हैं नॉट इन माय बजट, मे बी समडे, तो वो आपको उतना लो नहीं फील आता है। एक अपने दुखी होकर देखते तो हम खुद को अपने बारे में खराब फील करते, एक हफ्ता की ठीक है आज का मेरा बजट नहीं है, आज मुझे उतना स्पेंड नहीं करना, मे बी समडे। तो वो थॉट आप एक्सचेंज कर सकते हैं, आपको हेल्प करना होगा, दैट इज डेफिनेटली श्योर। Does that help you, Riya? Yes, ma'am. हेलो। हाय। हाँ, मैं कविता। आपने बोला कि प्रोस्पेरिटी एंड अबंडन आप मतलब रिलेशन में, अपने रिलेशन में भी ला सकते हैं, तो उसमें कैसे ला सकते हैं? थैंक यू। तो prosperity, abundance and relationship means having good people, having right people and people जो आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपको लव भी करते हैं, राइट? आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं भले ही कितना ही कोशिश कर ले, उनके दोस्त नहीं बन पाते एकदम,
तो वो भी लाख हो गया आपके रिलेशनशिप। कुछ लोग होते हैं जब उनको हेल्प चाहिए होता है कोई आके खड़ा नहीं होता उनके साथ, वो भी एक लाख हो जाता है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस है, जब आपके लाइफ में राइट पीपल है, जब आपको जरूरत है तो कोई ना कोई आपके साथ खड़ा भी है। एंड ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स नहीं बनते, आपके पास फ्रेंड्स भी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे। दैट इज अबंडेंस इन रिलेशनशिप। तो उसके लिए क्या प्लान करना पड़ेगा? अ जनरल क्वेश्चन टू एवरीवन, वी हैव टू बी खुद को लविंग। सबसे पहले खुद को जाना पड़ेगा। थैंक यू, यस। पहले हम वहाँ पे क्या बोलते नहीं, वो आके मेरे से बात नहीं किया तो हम बात क्यों करें, वो आके पहले दोस्ती करेगा। थैंक यू सो मच। ऐसा आपने कहा, पहले खुद आप फ्रेंड बनो, पहले खुद आप प्यार दो। कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं सामने वाला मेरे लिए ये क्या किया नहीं किया, हम भी तो कर सकते हैं, हम भी तो पहले साथ दे सकते हैं, राइट। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली वी हैव टू बी गिविंग लव। तो यहाँ पे लव का रखना पड़ता है, जनरोसिटी, कि यू नो माफ कर कितना कर पा रहे हैं, कितना हम लव दे पा रहे हैं, कितना हम सामने वाले को रेस्पेक्ट और एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो कभी कभी हम भी सोचते हैं भी हम क्यों प्यार दे, वो तो सामने वाला ऐसे थैंक नहीं यू। चला, और भाई उसका प्रॉब्लम है, वो आप तो प्यार दो, आप तो रेस्पेक्ट दो। अगेन हैविंग फेथ कि हम जो भी दे रहे हैं इट विल कम बैक। तो उस डाउट में नहीं रहना वापस आएगा कि नहीं है, एवरीथिंग दैट यू गिव विल कम। मैंने विश्वास जरूरी है सब चीज में। वो तो जरूरी है भाई, वो तो आप कुछ भी करेंगे तो जरूरी है, बिना विश्वास करेंगे हम चल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा, घर से बाहर निकलेंगे, अरे एक्सीडेंट हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, वो तो अंत ही नहीं। तो थोड़ा सा विश्वास जरूरी है कि भाई हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा तो हो ही जाए। Yes, thank you for the question. Yes, I hope somebody is writing very inspiring session. Poonam. So Poonam, I hope this inspires us to start practicing also. Yes, तो पहले तो आज एक नियम बनाइए आप लोग कितना सेव करने वाले। सेविंग आई थिंक इस ग्रुप का थोड़ा सा कम है, एनर्जी वाइज काफी कम है सेविंग का। मुश्किल से 10% ऑफ यू सेव करते होंगे, तो ये तो डेफिनेटली आपको बेटर करनी। सेकेंडली, डोनेशन आई डोंट थिंक इज अ बिग प्रॉब्लम। मे बी आप लोग कुछ लोग कम कर ज्यादा कर रहे हैं, बट डोनेशन कॉन्सेप्ट वैसा तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको शुरू करना है ये कि आप नियम से करो, डिसिप्लिन में करो। कभी कभार करते फिर बंद कर देते, वो मत। तो कोई भी चीज का रिजल्ट आपको देखना है तो कंसिस्टेंट होना पड़ता है। बच्चा भी अगर एक दिन लिखेगा पढ़ेगा, फिर समर हॉलीडे आता है, फिर क्या होता है, बच्चे लोग सब भूल जाते हैं, फिर कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी रहता है तो हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाता है, राइट। तो कंसिस्टेंसी एंड savings. Consistency in donating. Sorry, consistency is donating and savings. Yes. So if no other question, then shall we close? It's already 5. Prerna? Yeah, would you like to do the closing invocation? So please again. Before the just wrap it up. invocation, I want to say a few lines. Ki thank you for such a wonderful session, Ankita, and taking out time for us to tell us about prosperity and abundance. कि जब हमारे विचारों में अगर prosperity होगी, abundance होगे, तो हम लाइफ में abundance और prosperity को जरूर अट्रैक्ट करेंगे। उसके साथ हमें डोनेशन एंड टाइडिंग तो करना ही है। थैंक यू अंकिता, सच अ इंस्पायरिंग सेशन। मैम, Thank you so much, Prerna, for the opportunity also. कि मैम मैं एक share हमको कर पाई शेयर करना था। हाँ जी, मैम एक शेयर करना था ये डोनेशन को लेके। जी बिल्कुल। मतलब जैसे आप बोल रही हो कि बताया कि डोनेट रेगुलर नहीं कर पाता आदमी, कभी कभी। तो ऐसे मेरा भी था पहले कि मतलब कभी दिया, फिर 2-4-6 महीने, मतलब वही वाला सिस्टम। फिर अचानक से एक दिन दिमाग में है तो पूजा तो करते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ पैसे लेके रखते हैं, डालते हैं, उसके बाद इकट्ठा जब होता है उसको डोनेट कर देते हैं। तो हमको लगता है रेगुलर जो होता है कि ये ज्यादा सही है। हाँ, रेगुलरिटी जरूरी है। आपको जैसे मर्जी वैसे रेगुलरिटी ले आइए, पर हाँ जैसे आपने कहा रेगुलरिटी लाने से फर्क पड़ता है। उससे करने से मैं मतलब डोनेट जो होता है वो भी मेरा होता रहता है। और 4-6 महीने में मैंने देखा कि जो आप लोग बोलते हो कि डबल, तो डबल हमको लगता है डबल का डबल आता है। अरे मतलब वो वाह, चीज सही है। मेरे पास आता है। गुड गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग नम्रता, थैंक यू। चलिए, लेट्स डू अ क्लोजिंग प्रेयर। रिलैक्स करिए खुद को, इनहेल एक्सहेल स्लोली। Lord, to all the great ones, to all the spiritual teachers, to all the holy beings, to the deities of prosperity and abundance, we thank you all for your priceless blessings. Thank you for the reminder of the teachings and the inner strength to practice what we learn. Thank you also for blessing us, our loved ones, our work, with tremendous prosperity, abundance in all aspects of life. अगर आपके मन में कोई विश है, आप वो विश अभी मांग सकते हैं। कोई अगर
फाइनेंशियल टारगेट आपका है या कुछ इच्छा आपको कोई चीज की है, बहुत महंगी चीज हो, लाइक अ घर और कार और हॉलिडे, जो भी आपके विश है, प्लीज आस्क फॉर इट. Lord, thank you for helping us fulfill our financial wishes, our targets. Thank you for helping us overcome our financial challenges with any. Thank you for this blessing of a prosperous, abundant life. In full faith, with deep gratitude. Thank you, thank you, thank you. Gently, with a smile. Yes, thank you so much. Thank you very much. Thank Thank you. you so much. So much for the beautiful session. Thank you, ma'am. गुड इवनिंग, मेरा नाम प्रेरणा लोधा है। मैं चाकुलिया से बिलोंग करती हूँ। आई एम अ प्राणिक हीलर एंड अ बेसिक प्राणिक हीलिंग इंस्ट्रक्टर। तो empowerment is the mantra of our today's guest of the evening, who is joining us from Kolkata, Ankita Agarwal. Ankita was an interior designer, but now she is a full-time pranic healer. She entered into pranic healing in 2010. It's 11 years she's been in pranic healing, and since 8 years, Ankita is a trainer. Ankita is a trainer of basic, advanced, and psychotherapy. Ankita is spreading the teaching of Grandmaster Chokok Sui tirelessly in Assam, Jharkhand, Orissa, Punjab, and West Bengal. Her teaching style has clarity and is simple to understand. I welcome Ankita Agarwal to our session of Tea Time with our special guest. So welcome, Ankita. How are you, Ankita? You can unmute yourself, Ankita. First of all, thank you, Prerna, so much for the opportunity to join you all for the tea time. Unfortunately, I don't have my tea around me, but yes, I hope people are also having the tea. Huh? Such a nice way you just showed the tea there. Yes, and I was going through some of the participants, and I'm happy to see a lot of similar faces. So yay, welcome, and because of Zoom, we can connect also. Yes. So thank you Yes. so much, Prerna. Thank you so much, Nitilika, and everyone else who took out time and is joining for the session. Yes, how is everyone? Doing well? The session's helping Fine, us? waiting to see you. Was waiting to see you, and today the session has been joined. That's so sweet. Thank you. So I hope the sessions chal rahe hain, that all have been helping you all, and we'll just add new facets, new understanding again. So kyunki as per what I see, what I understand, a lot of you are already pranic healers, some of you are already, so काफी कुछ जो हम आपको बोलने वाले, maybe you already know. Yes, but hopefully it will also help to add some new understanding, and kabhi kabhi jab already pata bhi hota hai, it's a good way to just be reminded of the teachings, just recall acha kahan hum gadbad kar rahe hain aur kahan hum rectify aur kar sakte. Yes, and aaj hamara topic hone wala hai prosperity, and this is something that we all want, we all run after, but prosperity earn करना एंड प्रॉस्पेरिटी स्टेबल रखना, ये दोनों चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड कैसे दोनों चीज को अपने और एनहांस कर सकते हैं, एक छोटा सा वापस रिमाइंडर में सेशन में गो थ्रू करेंगे। एंड एज पर व्हाट आई अंडरस्टैंड, वी ऑलरेडी हैव सम टाइम आफ्टर द सेशन आल्सो टू हैव Q&A, राइट? सो आपको कुछ क्वेश्चंस अगर आता है तो टॉपिक, यस, आप चैट रूम में डाल सकते हैं, प्लस Q&A में भी हम लोग उसको कवर कर सकते हैं। सो बिफोर वी बिगिन, शैल वी डू अ शॉर्ट प्रेयर? Yes, so please prepare yourself, just close your eyes, relax yourself. Inhale, exhale slowly. The divine supreme being, divine father, divine mother, to all the great ones, to all the spiritual teachers, to all the holy beings, we humbly invoke for divine blessings, for divine guidance, for divine light, for enhanced prosperity, abundance in our lives, for divine help and divine protection. In full faith, we thank you. Gently, with a smile, open. Okay. तो जब हम बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी के बारे में, तो सबसे पहला माइंड में इमेज आता है ऑब्वियसली इज money. Although prosperity is not just money, it is also having healthy relationship, it is also having good health. लेकिन हमारे माइंड में सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी मतलब मनी ही आता है, चलिए मनी का ही बात करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, भले ही हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मनी, सेम प्रिंसिपल, सेम कॉन्सेप्ट्स आप अपने अदर एरियाज ऑफ लाइफ में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। यस, जो फॉर्मूला हमें मनी अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, सेम फॉर्मूला हमें और भी चीज अट्रैक्ट करने में हेल्प कर सकता है।
Yes. So first of all, being prosperous, right? आपको एक wealthy feeling देता है। आप लगता है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ खरीद सकते हैं। जब मार्केट में जाते हैं, आप कुछ खरीदने का मन करता है और प्राइस टैग दिखता है, तो लगता है यार ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो हमें प्रॉस्परस फीलिंग नहीं देता। प्रॉस्परस फीलिंग तब आता है जब आप कुछ करना चाहते हैं एंड मनी इज नॉट योर क्राइटेरिया कि हम नहीं कर पाए, राइट? वो आपको प्रॉस्परस फीलिंग देता है। सेकेंड होता है अबंडेंस। आप सुनते होंगे बाबा हम लोग प्रेयर जब करते हैं, थैंक यू गॉड फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस भी हम साथ में मीट करते हैं। एंड अबंडेंस मीन्स कि आपके पास जो भी नीड है वो मीट हो जाना। जो भी चीज है, चाहे वो खाने का हो, आपके पास कपड़े हो, आपके पास चीजें हो, रिसोर्सेज हो, अबंडेंस में है, कमी नहीं होती है। तो अबंडेंस एक सिचुएशन भी होता है कि लाइफ में सब कुछ अबंडेंस में है, सब कुछ इनफ है, सफिशिएंट है, आपका नीड्स पूरा होता रहता है। एंड कभी कभी अबंडेंस एक माइंडसेट भी होता है। माइंडसेट इन विच वे? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 10 रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? फॉर मोस्ट ऑफ अस हु इज हियर 10 रुपीज से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। येट अगर कोई बेगर को 10 रुपीज देना है, हाउ डू वी फील? एक ऑब्वियस थॉट आता है कि चलो वो मिसयूज नहीं हो, दैट इज फेयर इनफ। बट कभी पता है हम कैसे, हम क्यों देते 10 रुपीज, मेरे पास कम हो जाएगा। सम पीपल गेट दिस माइंड, राइट? तो वो लैक मेंटालिटी है। तो आपको अबंडेंस फीलिंग नहीं आता, आपको लगता नहीं काफी ज्यादा कुछ है, कुछ कमी है। ना देखेंगे बहुत जन बात करते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कैसे होगा, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है पॉपुलेशन हैंडल करने। एक बिगर लेवल पे वो भी एक लैक मेंटालिटी। आप 100 ईयर्स पहले देखिए जो पॉपुलेशन था और 100 ईयर्स बाद, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। 100 ईयर्स में पॉपुलेशन का कितना अंतर, फिर भी मदर नेचर इज प्रोवाइडिंग, राइट? ऐसा तो नहीं है कि मदर नेचर में खाना कम पड़ गया। सो देयर इज अबंडेंस इन नेचर। अगर आप वो चीज लेके चलेंगे कि दुनिया में हर कुछ सफिशिएंट है, मदर नेचर विल प्रोवाइड, गॉड विल प्रोवाइड। तो वो एक स्ट्रेस जो हम कैरी करते हैं, अगर उसको जॉब मिल जाएगा तो हमारा क्या होगा, वो ये चीज कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, या घर में कभी कभी उसको वो ज्वेलरी मिल जाएगी तो हमारा क्या होगा, तो वो सब स्ट्रेस कम होना शुरू हो। What we need to have prosperity is first and foremost an abundant mindset, the belief that there is sufficient for everyone. तो बहुत बार देखेंगे दुकानें खोल के बैठते हैं हम लोग, हमारा जब फैमिली बिजनेस होता है तो हमें टेंशन होती है कि ग्राहक वहां चला जाएगा तो हमारे यहाँ नहीं है, कस्टमर्स को लेके हम लगती, डजंट मैटर, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन। एंड ऐसा तो नहीं है कि सारे मेरे पास ही यार, राइट? एक लौता हमारा शॉप तो नहीं है पूरे शहर में या पूरे स्टेट में, देयर आर ऑलरेडी मेनी मोर पीपल, हमारा घर चल रहा है ना। सो लेट्स हैव दिस फेथ दैट थिंग्स विल वर्क आउट, एंड जो मेरा नहीं है वो ऐसे भी मेरा नहीं, तो उसके पास जाए या किसी और के पास जाए, हाउ डज इट मैटर? मेरे पास अगर ऐसे भी नहीं आ रहा, हाउ डज इट मैटर? तो ये बिलीव कि देयर इज इनफ एंड द बिलीव दैट नोबडी कैन टेक जो मेरा है, बोथ विल गिव यू लॉट ऑफ सिक्योर्ड फीलिंग। सिक्योर्ड फीलिंग, आई रिपीट, ये सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? व्हाट हैपेंस हम सिक्योर्ड नहीं फील करते? If you want to just type in the chat room, क्या होता है अगर हम सिक्योर्ड नहीं फील करते फाइनेंशियली, या इन टर्म्स ऑफ लेट्स से माय कस्टमर, या इन टर्म्स ऑफ माय बिजनेस, क्या होता है? कौन से स्टेट में हम आते हैं, कौन से इमोशनल स्टेट में हम रहते हैं? हाँ, थोड़ा सा ब्लैक रिस्पॉन्स है यहाँ पे। स्ट्रेस, लैक, व्हाट एल्स? अगर हम सिक्योर नहीं फील कर रहे, डेफिनेटली स्ट्रेस है, लैक है, डेफिनेटली, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वन स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे। It's okay, let's say that insecurity, yes, but insecurity also leading to desperation. I repeat, desperate state में हम आ जाते हैं। तो क्या होता है अगर हम desperate state में रहते हैं, right? हम जो भी काम करेंगे, that will always make me feel desperate. वो हमेशा मेरे को helpless वाला feeling देगा। To give you an example, क्या आपने कभी notice किया anyone जो job search कर रहे होंगे out of desperation? कभी हमारे बच्चे में भी, हमारे फैमिली मेंबर में भी, हमारे फ्रेंड, कभी कभी स्टेट आता है जब नहीं मिल रहा है जॉब एंड यू नीड अ जॉब, एंड बहुत डेस्परेट स्टेट में हम आ जाते। उस डेस्परेसी में क्या सोचते हैं, जैसा भी चलेगा बस एक बार मिल जाए, राइट? हम कुछ भी क्लॉज मानने को रेडी हो जाते हैं, जो शर्त है, जो टर्म्स एंड कंडीशन मानने को रेडी होते हैं, उसे चाहिए मिले। तो डेस्परेट स्टेट में वी अलाउ लाइफ टू टेक एडवांटेज ऑफ अस। आई रिपीट, डेस्परेट स्टेट में लाइफ हमारा एडवांटेज ले पाता है, लोग हमारा एडवांटेज ले पाते हैं, एंड हम जो अट्रैक्ट करते हैं दैट विल नॉट बी व्हाट आई वांट, क्योंकि हम क्या सोच रहे थे डेस्परेट स्टेट में, बस कुछ भी मिल जाए, जैसा तैसा भी मिल जाए, बस एक बार चाहिए मिले। तो इस जैसे तैसे के चक्कर में आई मे नॉट गेट समथिंग दैट इज वेरी गुड फॉर मी। वो जब चीज आ भी जाएगा मेरे को वो स्ट्रेस ही देता है,
फिर हम सोचते हैं भाई क्यों तो हमें काम, फिर याद आता है डेस्परेट थे, कुछ और नहीं मिला इसलिए निभा, तो निभाने वाला फीलिंग आ जाता है, वो बस करना पड़ेगा वाला फीलिंग आ जाता है, एंड दैट डज नॉट मेक अस हैप्पी। तो भले वो पैसा दे रहा है, राइट, भले वो जॉब हमें मनी दे रहा है, we don't feel prosperous, we don't feel abundant, in fact we feel helpless sometimes, right? And by the way, just to correlate, ये same desperation में जब कोई शादी करता है, you know, sometimes रिश्ता नहीं हो रहा होता है, and sometimes family pressure देने लगता है कि अरे नहीं हो रहा है इसी से कर लो, आप देखेंगे वो रिश्ता मन लायक नहीं मिलता, it is something जो you know compromise करना हो रहा है, adjust करना पड़ रहा है, बस करना। तो desperate state से अगर निकलना है, एक basic sense of security बहुत जरूरी है, एक stability बहुत जरूरी है, और इस स्टेबिलिटी के लिए ऑब्वियसली वी नीड टू आल्सो हैव सेविंग्स, राइट? तो हम बहुत जन रियलाइज नहीं करते ये चीज, इनफैक्ट बहुत जमाना चेंज हो रहा है, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, आप देखेंगे अगर हमारे जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे वुड सेव अ लॉट, राइट? कम खर्चा करते थे, हॉलीडे कॉन्सेप्ट पहले रहता नहीं था, हॉलीडे पहले मतलब दादी घर जाओ नानी घर जाओ, पहले यही हॉलीडेज होते थे, राइट? तो पहले सेविंग का कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड अभी जो ट्रेंड आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली एक ग्लोबलाइजेशन होता है, आपका यूएस यूरोप का भी इफेक्ट आता है, इन्फ्लुएंस आता है, अभी वो खर्चा बहुत जल्दी होना शुरू होता है, यू नो लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, आपको अपने शौक पूरे करने हैं, डिजायर्स पूरे करने हैं, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज कि उस चक्कर में सेविंग्स आजकल लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? सेविंग्स आपके कितना ही अमाउंट क्यों ना हो, भले ही आप एक छोटा छोटा अमाउंट से शुरू कर दो, पर वो सेविंग का इफेक्ट है दैट इट गिव्स यू द एनर्जी ऑफ स्टेबिलिटी। आई रिपीट, सेविंग्स स्टेबिलिटी देता है। आप देखो एनीवन जिनके पास सेविंग्स है एंड समबडी सेविंग्स नहीं है, हु इज मोर डेस्परेट, कस्टमर चाहिए चाहिए, जिनके पास सेविंग्स नहीं है, नहीं पता अगले महीना कहाँ से बिल भरेंगे अगर सेल नहीं हुआ, राइट? फॉर समबडी हु हैज सेविंग्स, ऑब्वियसली यू स्टिल वांट सेल्स, बट आप उतना डेस्परेट नहीं होते, उतना हेल्पलेस नहीं, राइट? नाउ इवन इफ यू आर अ नॉन अर्निंग मेंबर, अगर आपका खुद का कोई इनकम सोर्स नहीं है, आपको पॉकेट मनी मिलता होगा, आपके खुद के कुछ एक हाथ खर्च मिलता है, राइट? ट्राई टू हैव सेविंग्स फ्रॉम दैट। आपको पता है नेक्स्ट मंथ वापस मिल जाएगा, वेल एंड गुड, बट स्टिल हैव सेविंग्स। क्यों? वो आपको पर्सनली प्रॉस्परस फील करवाए, एंड ये अबंडेंस फीलिंग फिर आना इजी लगता है। अभी क्या है, रिमाइंड करना पड़ता है, अच्छा नहीं अबंडेंस सोचो, अबंडेंस सोचो, बाहर में तो सोच रहे हैं, अंदर में सोच रहे हैं कहाँ से तो होगा, कैसे तो होगा। तो अभी क्या है, वो बहुत नेचुरल फीलिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो बहुत फोर्स्ड वे में लाना पड़ता है उस फीलिंग को। बट सेविंग बहुत इजी तरीका है कि ये सारा इमोशन आपके अंदर नेचुरली आ जाए विदाउट मच एफर्ट, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्लोज योर आईज, आस्क योरसेल्फ, जब आपके हाथ में मनी होता है, व्हाट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स? एम आई थिंकिंग कि कहाँ कहाँ खर्चे करने हैं? एम आई थिंकिंग कि कौन से लोन चुकाना है? क्या वो स्ट्रेस में रहता है? एम आई थिंकिंग कि इसको बजट कैसे करना है? एम आई थिंकिंग सेल्स ये कितना करना है? व्हाट इज माय रिस्पॉन्स व्हेन आई हैव मनी इन माय? आपको ये आंसर नहीं करना मुझे, आपको सिर्फ अपने ओन एनालिसिस के लिए सोचना, राइट? नाउ जस्ट आल्सो आस्क योरसेल्फ, हाउ मच सेविंग्स डू यू ऑलरेडी हैव? आपका पर्सनल सेविंग्स, नॉट फैमिली सेविंग्स, नॉट जो दूसरे आपके नाम पे कर, आप खुद कितना सेव कर? जस्ट आस्क योरसेल्फ। या हो सकता है कभी इस फेस में सेविंग नहीं हो, बट कभी सेविंग होता था, या हो सकता है पहले नहीं होता था, आज सेविंग हो ना, दोनों सिचुएशन के अंतर को याद करें। जब सेविंग होता है तब आपको कैसा फीलिंग आता है, और जब सेविंग खत्म हो गई तब कैसा फीलिंग? सी वैसे आप ऑब्जर्व करेंगे ना लाइफ में कौन सा फॉर्मूला वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं वर्क कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि लाइफ एक साइकिल में, कभी लाइफ अच्छी होती है, कभी लाइफ खराब, तो उसको ऑब्जर्व करना भी जरूरी है। अच्छा गया तो क्या क्या करने से अच्छा गया, जब खराब सिचुएशन में है क्या क्या नहीं किए या क्या क्या किए जिससे खराब आ रहा है, ताकि हम वो गलती को रिपीट करना बंद करें। नहीं तो क्या होता है, लाइफ ऐसे चलता रहेगा, अब पता ही नहीं क्या फॉर्मूला कब काम कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, तो कहाँ करेक्ट करना है वो समझ में नहीं। तो एक स्टेप बैक लेना, कभी कभी ऑब्जर्व करना लाइफ को कि हाँ कौन से फॉर्मूला से मेरा लाइफ बेटर हो रहा है, कौन से फॉर्मूला से लाइफ और खराब हो रहा है, ताकि वी कैन अवॉइड जो हेल्प नहीं कर रहा है एंड वी कैन ऐड ऑन जो हमें हेल्प कर। क्योंकि लाइफ में आगे जाना दो चीज है, एक नेगेटिव को अवॉइड करना, राइट, एक होता है पॉजिटिव को बढ़ाते जाना। तो सेविंग इज वन थिंग दैट वी नीड टू ऐड। अगेन अ स्मॉल रिमाइंडर, आप भले एक छोटा अमाउंट से शुरू करो, डज नॉट मैटर, बट स्टार्ट सेविंग। भले आपको लगता है कि भाई खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे, सेविंग कहाँ से करें, डज नॉट मैटर। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, कहीं से तो शुरुआत कर सकते, राइट? एंड धीरे धीरे फिर ये अमाउंट बढ़ते जाए।
Okay, so saving gives us security. This is one word I would really like to add on. By the way, just to give you an idea, मैंने कुछ और session plan किया. But when I tuned into the group at 4:30 today, and जब मैंने बोलना शुरू की, topics automatically change हुए. So I realized कि अच्छा need कुछ और है. So saving is one message जो बहुत strongly आ रहा है for this particular. Definitely focus on saving and definitely focus on कैसे आप और add on कर सकते हो income source. Don't just stick to one income source. Yes, क्योंकि एक चीज जो हम लोग और सीखते हैं कि अपना बास्केट एक ही मत रखिए जिसमें सारे एग्स रखे हुए हैं. कोविड हैज टॉट अस अ बिग लेसन कि जितना आपका एक वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होता है, वैरायटी ऑफ इनकम सोर्स है, इट रियली हेल्प्स. राइट नाउ वैरायटी ऑफ इनकम सोर्स तब पॉसिबल है जब आपका फर्स्ट इनकम सोर्स स्टेबल है. अगेन द वर्ड स्टेबिलिटी, इफ यू नोटिस पावर स्टेबल वर्ड यहाँ पे आ रहा है. तो अगर फर्स्ट इनकम सोर्स ही स्टेबल नहीं है, उसमें ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर आप 2-3 और खोलने जाएंगे, दैट्स अ डिजास्टर फॉर यू. क्यों? क्योंकि हम एक में तो स्टेबल नहीं, 2-3 और खोल लिए, एक को मैनेज नहीं कर पा रहे, 2-3 और का स्ट्रेस ले लेंगे, कुछ भी मैनेज नहीं हो पाए. द फॉर्मूला इज पहले एक को स्टार्ट करिए, एक को ट्राई करते रहिए, तो सब बेटर बनाते रहिए. आपको रीप्लानिंग करनी पड़ती है. कुछ फॉर्मूला काम किया, कुछ फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, तो आपको वापस प्लान करना पड़ता है, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, काम को सेट करने में. जब वो सेट होना शुरू हो जाएगा, पता है कि हाँ मिनिमम इतना तो इनकम हो ही जा रहा है इस काम से, इतना तो मैनेज कर ही ले रहे हैं. राइट, देन यू स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग. फर्स्ट जैसे शुरू हो जाएंगे डाइवर्सिफाई करना. आप सोचिए, you know, some of you might be parents, आपका एक बच्चा है versus 2 kids, you know, twins जब होते हैं हालत खराब हो जाती है. एक बच्चा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर सेकंड का सोचते हैं हम लोग. सेम फॉर योर बिजनेस, सेम फॉर योर इनकम सोर्स. एक थोड़ा सेट हो जाए तो सेकंड को मैनेज करना इजी. बिकॉज अ न्यू बिजनेस इज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, कांस्टेंट अटेंशन, सब कुछ दिखना पड़ता है. राइट, डोंट बी इन अ रश, बी पेशेंट, अलाउ द प्रोसेस. एक टाइम दीजिए उस प्रोसेस को, सेट हो जाए तब वो बढ़ाना बहुत इजी है. फाउंडेशन टेक्स टाइम, बिल्डिंग खड़ा करना आसान. एक बार वो फॉर्मूला समझ में आपको आ जाता है, एक बिजनेस में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिजनेस में सेम फॉर्मूला कैन हेल्प. लेकिन अगर फर्स्ट में ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं, देन 2, 3, 4 करते जाना, व्हाट विल हैपन? फाइनेंशियल स्ट्रेस. कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए यू नीड कैपिटल, राइट? यू नीड वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट्स. और इन्वेस्टमेंट्स अगर आप एक बार में बहुत ज्यादा कर लेते हैं विदाउट अ प्रॉपर रिटर्न, इट्स अगेन नॉट अ हेल्दी इमोशनल स्ट्रेस. राइट, वो बहुत एड ऑन कर सकते. यस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आपको कोई भी बिजनेस से रिटर्न मिल सकता है बिना इन्वेस्टमेंट किए. शेयर मार्केट में आप घुसेंगे, अच्छा पहले शेयर से इनकम चाहिए फिर हम इन्वेस्ट करेंगे, क्या ये पॉसिबिलिटी है? No, man. यस, तो सिमिलरली लाइफ में अगर कुछ भी चाहिए, वी हैव टू फर्स्ट इन्वेस्ट. अगर हमें प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, वी हैव टू फर्स्ट इन्वेस्ट. वेयर डू यू इन्वेस्ट? यू इन्वेस्ट इन मेकिंग अदर पीपल प्रॉस्परस. यू इन्वेस्ट इन अदर पीपल के लाइफ में उनको इजी करने, तभी चैरिटी आता है, तभी हेल्प आता है. तो चैरिटी सिर्फ यही नहीं होता कि आप डोनेशन दे रहे हो. यस, डोनेशन आप बहुत सुन चुके होंगे, आई थिंक लॉकडाउन में आप सबको भी सेशन अटेंड किए होंगे, यू विल हैव हर्ड कि डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, डोनेशन इंपॉर्टेंट. आप चैरिटी करो, हेल्प द पीपल इन नीड. आपके स्टाफ को चाहिए होगा हेल्प, मे बी सम पुअर होमलेस पीपल ऑन द स्ट्रीट, मे बी किसी रिलेटिव. आप देखते हैं बहुत जन के लॉस हुए हैं कोविड में, तो ऐसे कोई घर है, कोई रिलेटिव है जहाँ पे पता है कि अर्निंग मेंबर्स नहीं है या अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं. यस, मनी से तो हेल्प है ही, बट क्या हम किसी को और तरीके से हेल्प कर सकते हैं? क्या हम किसी को जॉब लगवाने में हेल्प कर सकते हैं? क्या हम किसी को नया स्किल सिखा सकते हैं? कैन आई एटलीस्ट प्रे फॉर पीपल टू बी मोर प्रॉस्परस? तो बहुत तरीका होता है हेल्प करने का. बहुत जिनका लिमिटेशन आता है कि हाँ मेरे पास पैसे इतने नहीं कि मैं डोनेट कर सकती. है ना, जितने हैं उतना करिए, ठीक है. पर अगर डोनेट नहीं भी कर पा रहे, डोंट स्टॉप. मेरे पास डोनेशन 10% कर दिए महीने में एक बार, सिर्फ वो करके बैठिए मत. हेल्प मोर पीपल. राइट, अगर आपको पता है कि इंसान स्ट्रगल कर रहा है, जॉब ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा है, आप एक थॉट बनाओ कि भगवान उसको अच्छा जॉब मिल जाए. ये थॉट भी किसको हेल्प करते पता नहीं चलेगा. राइट, पर हम हेल्प उसमें करने से संकोच क्यों कर रहे हैं? हम उतना हेल्प क्यों नहीं कर सकते? हम वो थॉट क्यों नहीं बना सकते कम से कम? तो ये भी तो अबंडेंस हो गया ना. या फिर कभी कभी हेल्पलेस वाला फीलिंग आता है कि हम मेरे अकेले सोचने से क्या हो जाएगा. अरे आप सोचिए तो सही, आपके अकेले सोचने से सकता कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका एक सोच वो सागर का एक बूंद तो बनेगा ना. तो दिस इज वन थिंग दैट आई फर्मली बिलीव. आई डोंट नो क्यों, बट बचपन से ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरे अंदर, बूंद बूंद सागर. यू नो, इट्स एवरी ड्रॉप दैट काउंट्स, एवरी प्रेयर दैट काउंट्स. आप एक एक रुपया भी अगर सेव करते हैं, एवरीथिंग एड्स ऑन टू अ बिग बास्केट. राइट, तो ये मत सोचा करिए कि मेरे एक थॉट से क्या हो जाए. एक थॉट से नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप 10 थॉट्स बना लो.
कंजूसी की हुई है इसमें, राइट? तो अगर कुछ एक आपका कोई भी हिचक है, आपका कोई भी एक क्या बोलते हैं लिमिटिंग बिलीफ है, तो उसको ओवरकम करें। आज अपने बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ यू के प्राणिक हीलर ऐसी लग रहे हैं, अगर आज हम बोलते हैं कि आज हम प्राणिक हीलिंग कर रहे हैं, हम एनर्जी पे वर्क कर पाते हैं, तो अगर हम सीख रहे हैं कुछ, किसी का तो हेल्प होना चाहिए, एंड एवरी डे हेल्प होना चाहिए। तो ये एक फॉर्मूला बैठा लीजिए एक और मन में कि आज हम दिन भर में किसी के लिए भी एक हेल्पफुल थॉट बनाए कि नहीं बनाए, राइट? इवन इफ यू आर नॉट द अर्निंग मेंबर, अपने फैमिली बिजनेस को ब्लेस करिए ना, क्या दिक्कत? प्लांट, द आइडिया इज कीप प्लांटिंग, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप रिटर्न मत ढूंढिए। तो बहुत लोगों का कंप्लेन होता है, भाई हमें तो हम अर्निंग मेंबर भी नहीं है, हमें हाथ पैसे भी नहीं मिलते, पैसे मांगना पड़ता है। आप प्लांट तो करो, आप अर्निंग मेंबर नहीं होंगे, बट अपने थॉट में आप सपोर्टिव तो हो सकते, आप प्लांट तो कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज कम से कम, राइट? तो ये भी एक तरह का प्लांटिंग हो जाए। तो अगर हम प्लांट करेंगे, फ्रूट्स आएगा ही, राइट? अगर हम किसी के लिए सोचेंगे उसका बिजनेस और अच्छा जाएगा, फ्रूट्स आएगा ही। कभी कभी होता है कि ऑन द स्ट्रीट, सच एक आइडिया कैसे कैसे आप प्लांट कर सकते हो कि अगर आप स्ट्रीट में हैं, या समटाइम्स आपके वो क्या बोलते हैं उसको, वेंडर्स होते हैं ना, जो आपके रास्ते में आपको चिप्स बेचते हैं या कुछ बेचते हैं गाड़ी में सिग्नल्स पे, आपको कभी कभी नहीं खरीदना होता है, fair enough, पर आप थॉट तो बेच सकते हैं ना, भाई इसका घर चल जाए इजीली, भाई इसको प्रॉस्पेरिटी मिल जाए, उस एक थॉट में क्या दिक्कत? अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, आपको कुली नहीं चाहिए, तो एक थॉट बना दिया कि भाई इसका प्रॉस्पेरिटी मिले इसको। तो इवन इफ यू से नो टू समवन, राइट, हम उसके ऑर्डर में सिर्फ ना का एनर्जी क्यों दे? अब वो ना का एनर्जी लेके किसी और के पास जाएगा, क्या अट्रैक्ट करेगा? फिर ना ही अट्रैक्ट करेगा ना। कभी कभी हमारा थॉट वो भी तो इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर हम ना कर भी रहे क्योंकि मुझे सर्विस नहीं चाहिए, वेरी ना, बट कैन आई ऑल्सो प्लांट अ ब्लेसिंग उस पर्सन पे? चलो हम ना किए कोई बात नहीं, बट कहीं और से प्रॉस्पेरिटी मिल ही सकता है इंसान को। तो ये स्मॉल स्मॉल सोच में अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते, स्मॉल स्मॉल तरीकों से, स्मॉल स्मॉल मूवमेंट्स, ये लाइफ में एक अबंडेंस क्रिएट करने का सबसे इजी फॉर्म है। क्योंकि हम सबके लिए दुआ कर रहे हैं, सबकी लाइफ में सब कुछ, आवर लाइफ विल बी बेस्ट। पर ये जो कभी कभी हम जब नाराज हो जाते हैं जिंदगी, जब लाइफ अच्छी नहीं जा रही होती, फिर सोचते हैं यार क्यों तो करते हैं, कुछ मिलेगा तब अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छा होगा मेरे संग तो हमको बिलीफ आएगा। ये फॉर्मूला थोड़ा सा छोड़ना, लर्न टू हैव फेथ कि आप प्लांट करो, वो बीज का फल निकलेगा ही, राइट? ये सिंपल सा फेथ आपको बहुत आगे ले जाएगा। कभी कभी हमको दुख होता है कि भाई हम उसके तो आपने बिल ठीक से नहीं, पर आपने 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, राइट? आप दे दिए ना एक्स्ट्रा, और सपोज आप घर आके सोचे कि अरे हम 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, हम ध्यान नहीं दिए, कोई बात नहीं, थॉट चेंज करिए, हम किसी को एक्स्ट्रा दिए ना, वो एक्स्ट्रा भी वापस रिटर्न होगा, कोई आपको भी एक्स्ट्रा दे सकता। तो ये अगर हम वो नेगेटिव सोचते रहेंगे, क्यों दुकान वाला देखा नहीं, वो एक्स्ट्रा ले लिया, मैंने से बताया भी नहीं, ये वो, तो जितना नेगेटिव भेज, वो 100 रुपए दे के भी नेगेटिव ही आना है मेरे पास, क्योंकि 100 रुपए के साथ साथ हम नेगेटिव एनर्जी साथ में भेज, तो एक्स्ट्रा कभी पेमेंट कर भी जाते हैं। सपोज मेरा चेंज नहीं था, कहीं आप दे रहे हो, वो आपका फॉर एग्जाम्पल 105 बना, वो 110 ले लिया, ये जो एक्स्ट्रा अगर दे भी रहे, just have the faith कि all extra will come back to you. Don't send negativity साथ, राइट? तो ये अबंडेंस क्रिएट करेगा आपके खुद के माइंड में कि ठीक है एक्स्ट्रा ही तो गया, कोई दिक्कत नहीं, वापस भी आएगा, और आपकी लाइफ में भी अबंडेंस क्रिएट करेगा। वरना बहुत लोग एक्स्ट्रा तो देते हैं लेकिन साथ में किच 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 करते रहते, कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो रिटर्न नहीं आता। वो फिर आपको रिटर्न आएगा ना, वे कि प्रॉस्पेरिटी रिटर्न नहीं आता है, वो वापस में कोई गाली देता है पैसा देते वक्त हमें, कितना पैसा लग रहा है, ऐसा देना पड़ रहा है, वैसा देना पड़ रहा है, और हमें अच्छा लगता नहीं है। नन ऑफ अस हियर अगर कुछ सुनाता है पैसे तो अच्छा लगता है हमें, राइट? तो लेट अस नॉट आल्सो इन आवर माइंड सुनाओ किसी को कि एक्स्ट्रा लग गया या ये लग गया या वो लग गया, क्योंकि ये बहुत पिंचिंग हो जाती है, स्पेशली रेस्पेक्ट को बहुत हर्ट कि अगर कोई पैसे के लिए हमें सुना। यस, कुछ कुछ क्लैरिटी लग रहा है कि कहाँ कहाँ सोच सकते हैं, कहाँ कहाँ और ठीक कर सकते हैं। यस, तो okay, I always overstepped a little bit, so just if you can have Q&A, if you have any question, kuch of clarity, we can definitely look into it, answer those also. सब इतना ब्लैंक है पूरे सेशन में, समझ में आ रहा है रॉन्ग बोल रही हूँ, पॉइंट पे बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? It was a wonderful session, Ankita. Very, very informative. Thank you so much. Thank you. So, questions? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस या कोई भी इससे हाँ जी, रिलेटेड कोई पूछना। क्वेश्चन है? एक चीज था अंकिता जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। मैं कंचन आपकी स्टूडेंट
हाँ जी, मुझे मैं पहचानी आपको। जैसे अगर अपने लोग के पास, जैसे हम लोग को कोई चीज का फीस पे करना है और अभी हम लोग के पास इतना है नहीं, तो हम लोग को क्या वो चीज टाइम बीइंग के लिए ड्रॉप कर देना चाहिए कि लाइक अभी हम लोग का फैमिली इतना सपोर्ट नहीं कर सकता, मैंने क्या थॉट क्रिएट करना चाहिए उस समय के लिए? डिपेंड करता है फीस भरना है किस टाइप का। नॉर्मली अगर फीस होता है तो ट्यूशन फीस जैसा हो जाता है, उस टाइप का बोल रहे हो? हाँ। ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, राइट? तो स्कूल फीस, ट्यूशन फीस क्या टाइम पे देनी ही पड़ती है। अगर नहीं दे पा रहे तो स्कूल ऑब्वियसली फीस नहीं है, समझे कुछ एक्स्ट्रा है। स्कूल फीस तो चलिए हम लोग भर पा रहे हैं, समझे ऐसे कुछ हम लोग ने ज्वाइन किया है एंड अब लग रहा है कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन इतना नहीं है, तो मैंने इन दैट पोजीशन मैंने हम लोग को क्या करना चाहिए कि वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल बजट। अगर हम ऐसा कुछ ज्वाइन कर लिए हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो हम करना चाहते हो, मनी नहीं हो पा रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल बजट योरसेल्फ। हर चीज का खर्चा डिवाइड करिए, देखिए मेरे पास सेविंग्स इतना आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एंड देन डू इट। ना जरूरी नहीं हम लोग हमेशा, अगर तुरंत लगता है कि नहीं तुरंत बहुत फाइनेंशियल बर्डन जा रहा है मेरे लिए, टेक योर टाइम, 3 months 4 months 5 months रुक जाइए, फिर आप शुरू कर लो, लेकिन सेव इन दिस पीरियड ऑफ टाइम ताकि हम वो क्लास कर सकें। नाउ फॉर मी, मेरा लॉजिक ये है कि अपने सपने को कम मत करिए, अपना कैपेसिटी बढ़ाइए, राइट? तो अगर वो क्लास जेन्युइनली अच्छा है, अगर वो नॉलेज जेन्युइनली आपके काम का है, हाउ कैन आई इंक्रीज माय रिसोर्स टू डू दैट? यस, दिस इज माय एडवाइस। मन मारने का काम मैं थोड़ा सा कम सजेस्ट करती हूँ। मैं बोलती हूँ सब कुछ मिलना चाहिए लाइफ में, लेकिन ऑब्वियसली प्लानिंग एंड विद बजटिंग। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, कंचन? देखिए अब एग्जैक्टली मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा एग्जैक्टली क्या करना है, सिचुएशन डिपेंड होता है, आपका खुद का क्या फीस है, आपका क्या बजट है, वो मैं एग्जैक्टली बहुत फैक्टर्स है उसमें, पर आप जनरली ये चेक कर सकते हो कि हाउ कैन आई प्लान। प्लानिंग करिए, हो जाएगा, क्यों नहीं? अगर स्पेशली वो क्लास हेल्पफुल है, आपको हेल्प हो। Yes, Sushma, you can unmute yourself. जैसे आपने नितिका हाथ ने बोला उठाया। टाइडिंग एंड सेविंग गो हैंड इन हैंड, बिल्कुल। डोनेशन भी करना है, प्लांट भी करते जाना है, सेविंग भी करना है। तो ये आपका हो गया टू क्रिएट प्रॉस्पेरिटी। जो हमें अवॉइड करना है कि मेरे चलते किसी को नुकसान, तो उससे हमारा भी नुकसान है। जैसे बहुत जन होते हैं, आप देखेंगे पैसा तो पानी की जैसे जीवन में आता है, कितना कमाते हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे पूछो कहाँ है, लोगों का रोना क्या है, अरे पैसे तो आ जाते हैं लेकिन टिकता नहीं, हाथ में पैसे नहीं टिकते, सब खर्चा हमारा लोन पे ऑफ करने में जा रहा है, या EMI में जा रहा है, या इसमें, तो पैसे ठिकाने हैं, राइट? तो एक तो सेविंग हो गया, दूसरा हो गया कि मेरे चलते किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी को पैसा मेरा बनता है किसको देने का, आप देते जाओ, मेरे चलते लॉस में नहीं हो, तो पायरेसी जितना कम हो सके, राइट? ऑल दिस रियली हेल्प्स। टाइदिंग पैसा लाता है, आई रिपीट, टाइदिंग डोनेशन देना पैसा लाता है, लेकिन पैसा टिकाने के लिए सेविंग एंड डू नॉट क्रिएट लॉसेस, किसी और को लॉस मत कीजिए, तो पैसा टिकता भी है। सुषमा जी, अगेन आपका क्वेश्चन था, प्लीज गो अहेड। I wanted to know, like, suppose if we want money, where we have to tithe? I'm confused with that. Sometimes we tithe for medical and some other things, food. Then we will get that particular thing वापस. What about money? आपने कितने लेवल्स किए? आपने आध्यात्मिक तक कर लिया, कृषति तक कर लिया? आरातिक तक किया है। कृषति, आरातिक। ओके। तो अगर आरातिक तक किए हैं, व्हाट आई विल सजेस्ट इज तो 10% डोनेशन जो होता है, सबका सब एक जगह मत डालिए, ट्राई टू डिवाइड इट। तो कुछ आप कर दिया वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए या फाइनेंशियल हेल्प के लिए, कुछ आप कर दिए फूड मेडिसिन, कुछ आप कर दिए एजुकेशन। तो क्या है, घर परिवार को सब कुछ चाहिए होता है, तो सब टाइप के कर्मा भी वापस घूम फिर के आते हैं। यस, वेलकम। रिया रुद्र। यस मैम। मैम ये पूछना था कि जैसे आपने बोला कि अगर आपको कोई चीज खरीदना है और वो आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, फिर भी आप सोचो, मतलब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये चीज? वो तो आप मतलब नहीं है ना बस की, तो फिर क्यों? नहीं, मैं समझी आपका। अगर आप नहीं कर पाते हो तो सेव करो, राइट? रिया, आपका क्वेश्चन वापस बोलिएगा, आप बोल रहे हो मैम मैं कह रही हूँ, डाउट आ रहा है आपको? हाँ, आपने बोला था कि जैसे आपको कोई चीज लेना है, पसंद आ गया मार्केट में, तो आप अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो आप मतलब ऐसे सोचते हो कि अरे मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, तो फिर इस सिचुएशन में यही आएगा ना दिमाग में, अगर आपके पास पैसे नहीं हो या फिर आप नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मैं बोल ही रही थी, वो मैं वही बात बोल रही थी, अगर जाते तो नॉर्मली अफोर्ड आता ही है, तो ये अबंडेंस वाला फीलिंग नहीं आता है, लैक मेंटालिटी हो गया, ये मैं बोल रही थी आपको। तो दैट इज अ वेरी नेचुरल थॉट एंड वो आता ही है, एंड आप देखेंगे वो थॉट हमें प्रॉस्पेरस फील नहीं कराता है, तो वही मैं बोल रही थी कि इट्स अ नेचुरल रिएक्शन।
ना रहा बात कि क्या सोचना चाहिए, आप बोल सकते नॉट इन माई बजट, मे बी समडे, तो वो आपको उतना लो नहीं फील आता है। एक अपने दुखी होकर देखते तो हम खुद को अपने बारे में खराब फील करते, एक हफ्ता की ठीक है आज का मेरा बजट नहीं है, आज मुझे उतना स्पेंड नहीं करना, मे बी समडे, तो वो थॉट आप एक्सचेंज कर सकते हैं, आपको हेल्प करना होगा, दैट इज डेफिनेटली श्योर। डज दैट हेल्प यू रिया? यस मैम। हेलो। हाय। हाँ, मैं कविता। आपने बोला कि प्रोस्पेरिटी एंड अबंडन आप मतलब रिलेशन में, अपने रिलेशन में भी ला सकते हैं, तो उसमें कैसे ला सकते हैं? Thank you. So prosperity, abundance and relationship means having good people, having right people and people जो आपको support भी करते हैं, आपको love भी करते हैं, right? आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं भले ही कितना ही कोशिश कर ले उनके दोस्त नहीं बन पाते एकदम, तो वो भी लाख हो गया आपके रिलेशनशिप। कुछ लोग होते हैं जब उनको हेल्प चाहिए होता है कोई आके खड़ा नहीं होता उनके साथ, वो भी एक लाख हो जाता है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस है, जब आपके लाइफ में राइट पीपल है, जब आपको जरूरत है तो कोई ना कोई आपके साथ खड़ा भी है, एंड ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स नहीं बनते, आपके पास फ्रेंड्स भी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, दैट इज अबंडेंस इन रिलेशनशिप। तो उसके लिए क्या प्लान करना पड़ेगा? अ जनरल क्वेश्चन टू एवरीवन, वी हैव टू बी खुद को लविंग। सबसे पहले खुद को जाना पड़ेगा। थैंक यू, यस। पहले हम वहाँ पे क्या बोलते नहीं, वो आके मेरे से बात नहीं किया तो हम बात क्यों करें, वो आके पहले दोस्ती करेगा। थैंक यू सो मच, ऐसा आपने कहा, पहले खुद आप फ्रेंड बनो, पहले खुद आप प्यार दो। कभी कभी होता है कि हम सोचते सामने वाला मेरे लिए ये क्या किया नहीं किया, हम भी तो कर सकते हैं, हम भी तो पहले साथ दे सकते हैं, राइट? एंड सबसे इम्पोर्टेंटली वी हैव टू बी गिविंग लव। तो यहाँ पे लव का रखना पड़ता है, जनरोसिटी, कि यू नो माफ कर, कितना कर पा रहे हैं, कितना हम लव दे पा रहे हैं, कितना हम सामने वाले को रेस्पेक्ट और एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो कभी कभी हम भी सोचते हैं हम क्यों प्यार दे, वो तो सामने वाला ऐसे नहीं, चलो भाई उसका प्रॉब्लम है, वो आप तो प्यार दो, आप तो रेस्पेक्ट दो। अगेन हैविंग फेथ कि हम जो भी दे रहे हैं इट विल कम बैक, तो उस डाउट में नहीं रहना वापस आएगा कि नहीं है, एवरीथिंग दैट यू गिव विल कम। मैंने विश्वास जरूरी है सब चीज में। वो तो जरूरी है भाई, वो तो आप कुछ भी करेंगे तो जरूरी है ना, हम चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा, घर से बाहर निकलेंगे अरे एक्सीडेंट हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, वो तो अंत ही नहीं। तो थोड़ा सा विश्वास जरूरी है कि भाई हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा तो हो ही जाए। Yes, thank you for the question. Yes, I hope somebody is writing very inspiring session. Poonam. So Poonam, I hope this inspires us to start practicing also. Yes, तो पहले तो आज एक नियम बनाइए, आप लोग कितना सेव करने वाले। सेविंग आई थिंक इस ग्रुप का थोड़ा सा कम है, एनर्जी वाइज काफी कम है सेविंग का, मुश्किल से 10% ऑफ यू सेव करते होंगे, तो ये तो डेफिनेटली आपको बेटर करनी। सेकेंडली डोनेशन आई डोंट थिंक इज अ बिग प्रॉब्लम, मे बी आप लोग कुछ लोग कम कर ज्यादा कर रहे हैं, बट डोनेशन कॉन्सेप्ट वैसा तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको शुरू करना है ये कि आप नियम से करो, डिसिप्लिन में करो, कभी कभार करते फिर बंद कर देते वो मत। तो कोई भी चीज का रिजल्ट आपको देखना है तो कंसिस्टेंट होना पड़ता है। बच्चा भी अगर एक दिन लिखेगा पढ़ेगा, फिर समर हॉलीडे आता है, फिर क्या होता है बच्चे लोग सब भूल जाते हैं, फिर कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी रहता है तो हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाता है, राइट? तो कंसिस्टेंसी एंड सेविंग्स, consistency in donating, sorry, consistency is donating and savings. Yes, so if no other question then shall we close? It's already 5. Prerna? Yeah, would you like to do the closing invocation? So please again, before the invocation, I want to say a few lines. Ki thank you for such a wonderful session, Ankita, and taking out time for us to tell us about prosperity and abundance. कि जब हमारे विचारों में अगर prosperity होगी, abundance होगे, तो हम लाइफ में abundance और prosperity को जरूर अट्रैक्ट करेंगे। उसके साथ हमें donation and tithing तो करना ही है। Thank you, Ankita. Such an inspiring session. Thank you so much, Prerna, for the opportunity also. मैम एक हमको भी शेयर करना था। हाँ जी मैम एक शेयर करना था ये डोनेशन को लेके। जी बिल्कुल। मतलब जैसे आप बोल रही हो कि बताया कि डोनेट रेगुलर नहीं कर पाता आदमी, कभी कभी तो ऐसे मेरा भी था पहले कि मतलब कभी दिया फिर 2-4-6 महीने, मतलब वही वाला सिस्टम। फिर अचानक से एक दिन दिमाग में है तो पूजा तो करते हैं, तो क्या करते हैं कुछ पैसे लेके रखते हैं, डालते हैं, उसके बाद इकट्ठा जब होता है उसको डोनेट कर देते हैं। तो हमको लगता है रेगुलर जो होता है कि ये ज्यादा सही है।
हाँ, रेगुलरिटी जरूरी है, आपको जैसे मर्जी वैसे रेगुलरिटी ले आइए, पर हाँ जैसे आपने कहा रेगुलरिटी लाने से फर्क पड़ता है। उससे करने से मैं मतलब डोनेट जो होता है वो भी मेरा होता रहता है, और 4-6 महीने में मैंने देखा कि जो आप लोग बोलते हो कि डबल, तो डबल हमको लगता है डबल का डबल आता है, अरे मतलब वो वाह, चीज सही है। भी मेरे पास आता है। गुड गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग नम्रता, थैंक यू। चलिए, लेट्स डू अ क्लोजिंग प्रेयर, रिलैक्स करिए खुद को, इनहेल एक्सहेल स्लोली। Lord, to all the great ones, to all the spiritual teachers, to all the holy beings, to the deities of prosperity and abundance, we thank you all for your priceless blessings. Thank you for the reminder of the teachings and the inner strength to practice what we learn. Thank you also for blessing us, our loved ones, our work, with tremendous prosperity, abundance in all aspects of life. अगर आपके मन में कोई विश है, आप वो विश अभी मांग सकते हैं। कोई अगर फाइनेंशियल टारगेट आपका है या कोई इच्छा आपको कोई चीज की है, बहुत महंगी चीज हो, लाइक अ घर और कार और हॉलिडे, जो भी आपके विश है, प्लीज आस्क फॉर इट। Lord, thank you for helping us fulfill our financial wishes, our targets. Thank you for helping us overcome our financial challenges with any. Thank you for this blessing of a prosperous, abundant life. In full faith, with deep gratitude. Thank you, thank you, thank you. Gently, with a smile. Yes, thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. So much for the beautiful session. Thank you, ma'am.